लास्ट होने वाली मेरी आलतू फालतू सवाल पूछ रहे हैं आप। Hello students, good morning all.
Good morning, sir. Hello guys, are you able to hear me? Ayush, Sir, could you disable the annotation and could you let us all unmute? Hello, sir. hello guys, are you able to hear me? Yes, sir. Hello students, hello. Please speak out. Yes, sir, I did it. sir, you can hear. Yes, sir, we can hear you. Hello students, good morning all. Guys, are you able Good morning, to hear sir. me? Yes, sir. Please speak out. Yes, sir. Sir, we have been muted and the chat is disabled. So, Are you able to unmute now? Hello, guys. Yes, you can. Yes, we can unmute. Yes, we can unmute. Okay, okay. Hello. Guys, please Hello, speak out. sir. Hello, Yes, sir. Hello, sir. Sir, can you hear us? hello, sir. Guys, I guess sir is not able to Hello. hear us. Guys, please speak out. Hello, sir. Are we audible? Hello. 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 Hello students, good morning all. Hello. Hello, good morning, sir. morning. Sir, please check the group once. Check the group once. Yeah. Sir, are you able to hear me now? Yes, yes, yes. Huh. Okay. Okay, then it's fine. Okay, okay, guys. So
लास्ट क्लास में where did we do? Where were we? We solved the question. Okay, okay. So we are doing exercise one ka. Did we do the first one? The 7th one as well. Okay, exercise one first. Please try. The first one we did as well, I guess. First one we didn't do, huh? I guess. Please check. Hello, sir. Sir, we didn't do the first one. Okay, okay. We didn't do the first one, huh? Okay, okay. You told us to do, but we did not discuss that. Okay, okay, okay. Huh? I for backup, please also take screenshot also, huh? Sure, sir. So, okay, first one, guys, please try. So, punch. फर्स्ट के लिए व्हाट वी आर गिवन यहाँ पर जो है ये वेसल और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है गाइस यहाँ पर ना एंड दिस लेंथ इज हाउ मच द लेंथ हाँ 2h ना दिस लेंथ इज 2h ठीक है और ये एक्सेलरेट कर रहा है साइड it is accelerating. This acceleration A naught से तो ये लिक्विड किस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड Left side. ओके सो इस साइड जो है पहले मान लो H था से X आ गया इस साइड X वाला X इस साइड आ गया मतलब नीचे जो बीच पोर्शन में कौन सा लिक्विड था हायर डेंसिटी हायर डेंसिटी से 2 रो तो दिस इज से 2 रो हाँ और ये डेंसिटी रो वाला है what is the length of the density rho of liquid H ना Yes, sir. H. ये वाला X है X पीछे आ गया ये इस साइड आया X और इस साइड लो डेंसिटी वाला लिक्विड बचा हुआ है what will be the height H minus X. H minus X okay so this will be H minus X so ये तो हो गया अब it is also accelerating with the acceleration A naught अब इसमें जो है we have the concepts fluid के concept लगाने we have studied variation of pressure ना किस पॉइंट्स पे हमने पढ़ रखा है variation Both horizontal and vertical. okay horizontal and vertical so let us mark points भाई चलो ठीक है so if we mark points what will be the pressure at this point P naught P naught यहाँ का pressure P naught plus rho GH. P naught plus Rho GH. rho GH यहाँ का pressure क्या होगा P naught P naught plus plus rho rho GH GH plus rho GX. 2 rho gx. Rho GX. 2 rho GH okay यहाँ का आ गया अब यहाँ पे चालू करते हैं यार what will be यहाँ का pressure P naught. P naught. P naught what will be यहाँ का pressure P naught Not rho G H minus X. H minus X okay अब जो है यहाँ चलो इसको करते हैं ना यहाँ का पता है और we know that in the direction of acceleration इधर है भाई हाँ acceleration तो इस साइड है acceleration pressure डिक्रीज करता है लेकिन हम उसके अपोजिट जा रहे हैं अभी यहाँ से इधर जा रहे हैं we are going for 5 to 4 तो 5 to 4 अगर जा रहे हो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा this value से क्या होगा कम होगा या ज्यादा होगा ज़्यादा. ओके Sir, why don't we just take 3 and 5 as the endpoints and do? Density से अलग है ना. डेंसिटी बीच में चेंज हो रहा है भाई Oh, okay, समझा. तो रो जी H माइनस एक्स प्लस यहाँ से ज्यादा होगा क्या होगा वैल्यू फिर Rho A naught into. रो A नॉट इंटू एक्स ओके ये तो हो गया भाई हाँ अब जो है वैसे यहाँ का आ गया
ठीक है, अगर यहाँ का आ गया सो यहाँ से इधर जाना है, तो ये जो वैल्यू है इसके रेस्पेक्ट में देखना होगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये वाला इधर जा रहा है। Sir, now we are applying between 3 and 4 now. यस, वी आर गोइंग फ्रॉम 4 to 3। सर P3 ज्यादा होगा। 3 पे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। Yes sir, Yes, sir. ओके, उसमें 2 रो की A नॉट ऐड हो गया। 2 row A naught into 2h minus x. 2h minus x. h minus x plus रो a naught x plus 2 रो, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2h 2h minus x. 2h minus x. 2 रो g into 2h minus x। Sir, 2h minus 2x ना? 2h कैसे आया, अरे ये वाला टोटल, ये टोटल ये वाला लेंथ इज 2h। अच्छा नहीं सॉरी सर व्हाट इट। ये आया आपका प्रेशर, किस पॉइंट का प्रेशर है ये वाला, 0.3. और ये वाला 0.3. let us equate them, so p naught plus rho g h plus p3 को इक्वेट कर रहे हैं, p3 equal to p3, p naught plus rho g plus 2 rho g x is equal to p naught plus rho g h minus x plus rho a naught x plus 2 rho g 2h minus x। Guys, let us solve। चलो गाइस, ये आया क्या, सबका आंसर क्या आ रहा है इसमें, x की वैल्यू, x कैलकुलेट करना है। Sir, in the last term it should be 2 row G by 2, right? अरे यार, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, हाँ G by 2. हाँ yes sir. सॉरी a naught की वैल्यू g by 2 लेनी है, ओ यार, हाँ sir. a naught की वैल्यू प्लीज टेक g by 2। Sir, तो last term में divide by 2 भी आएगा ना? कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। Sir, RHS का last statement का RHS का last term. 2 rho g 2h minus x का g by 2 होगा। ओके, ये वाला टर्म हो रहा है, यू सही। हाँ सर sir. वो हॉरिजॉन्टल है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं। Yes sir. मैंने देखो इसका ये तो लिखा p नॉट, यही वाला टर्म लिख दिया है बस, हाँ p नॉट रो a, और ये वाला क्या था 2 रो g, एक्सेलरेशन मिसिंग है ये, यस सर यहाँ पे 2 रो a नॉट होना चाहिए। ओके। Sir, I am getting x is equal to 3h by 5. x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3h by 5. 7 आ रहा है। x की वैल्यू 4, चेक करते हैं. 4h by 7. प्लीज एवरीबॉडी चेक। Yes, sir. हाँ सर आ रही है. ओके ओके, चलो ठीक है। सर आपको वो वाला टर्म कैसा, 2 रो जी एच 2h minus x? यू आर सेइंग कि 2 रो g, यस सर, वो a नॉट होना चाहिए, आपने g लिखा था इसलिए कंफ्यूजन था। ओके सर, ये वाला ना, यस समझ आ गया। ओके ओके। अरे इसके बाद कौन सा एग्जाम था जो अपने नहीं किया था, 13 वाला था क्या, 5, sir. 5 था, ओके प्लीज ट्राई 5। ओके गाइस, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब तो 5th वाला ट्राई करो।
So the answer to the first one should be 8h by 7, right? Because the difference in heights will be 2x. ओहो, अरे यार, हाँ, अपने को हाइट x नहीं मांगा है क्या? ओके, सर हमने ये एक ही साइड का डिफरेंस इन हाइट x लिया है, तो ओके, ओके, दोनों लिम्स का डिफरेंस इन हाइट चाहिए, तो वो 2x हो जाएगा। ओके। सो एक मिनट, हाँ, जो है डेल्टा h विल बी गाइस, अभी मान लो ये लेफ्ट साइड का हाइट माइनस राइट साइड का, राइट? तो लेफ्ट का कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, h प्लस एक्स, और राइट साइड में हाइट कितनी हो गई, h माइनस एक्स, एंड डिफरेंस विल बी 2x। सो ये आंसर डिफरेंस मांगा है, सॉरी, हाँ, डिफरेंस इज 8h by 7। डिफरेंस करेक्ट है, हाँ। गाइस, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? किसी को डाउट तो नहीं? हाँ, ये वाला सम प्लीज आस्क, किसी को डाउट? सर क्या हम लोग दोनों P4 इक्वेट नहीं कर सकते थे? दोनों का P4, हाँ हाँ, कैसे भी कर लो, ओके ओके सर। किसी पॉइंट पे इक्वेट कर लो, कहीं से भी। जैसे मैंने यहाँ पर किस पॉइंट पे लेके आया, 3 पॉइंट पे। आप यहाँ पे ला सकते हो, या कई लोग ऐसे, जैसे याद है हमने एक्सरसाइज 5 का सम किया था, यहाँ से ट्रैवल किए और यहाँ पहुंच गए थे। हाँ ओके सर। योर चॉइस, हाँ। आयुष अंडरस्टूड? Yes, sir. Got it. ओके, ओके, हाँ। How will you do this one? तो एक्सेलरेशन जो है, इट इज अपवर्ड, सॉरी। गाइस, कैसे करेंगे यहाँ पर? So we can write the dynamic equations, right? And take a small element. ओके, मतलब वेरिएशन ऑफ प्रेशर करना है ना जी इसमें? हाँ sir, but because the force mg is also taking part in the horizontal, like the acceleration along the incline, then ओके, जैसे इसमें अगर कि मान लो ऐसा सोचते हैं, सपोज वी हैव दिस वेसल, है ना? अब इसमें अगर कि सपोज ऐसा देखते हैं उसको, और ये एक्सेलरेशन कितने से जा रहा है, a0 से जा रहा है, ठीक है? अब g जो है अलोंग द प्लेन ना, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन, 2 कंपोनेंट्स आएंगे g के। सो yes sir. जी के कंपोनेंट्स जो है, अब ये बताओ कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कितने आएंगे? व्हाट इज परपेंडिकुलर प्लेन? G cos alpha. परपेंडिकुलर वाला इज जी कॉस अल्फा, और ये वाला जी साइन अल्फा, जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा, ठीक है? अब जो है, अब इस पर पहला फर्स्ट, अगर कि इसको जो है फंडामेंटल से सोचते हैं, हाँ, तो फंडामेंटल से अगर सोचते हो तो क्या करोगे आप? अगर वेरिएशन ऑफ प्रेशर डेवलप करने जाओगे, सपोज जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर से किया था, तो P2 और P1 के बीच में क्या रिलेशन आने वाला है? कैन यू टेल? यू टेक एन एलिमेंट, फिर y डायरेक्शन में p प्लस dp ऐसे लिखोगे और न्यूटन्स लॉ लगाओगे, तो y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हियर, और इसको y बोलते हो, इसको y कॉल करते हो और इसको x कॉल करते हो, तो क्या रिलेशन आने वाला है?
P2 is P1 plus plus rho g cos Rho alpha G. h. G cos alpha into H, ये आएगा। Yes. इसको ऐसे करेंगे ना, देखो ये वाला जो है, और एक एलिमेंट लोगे, एक छोटा सा एलिमेंट याद है, सेम अप्रोच, यहाँ से इसको लिखोगे y, फिर ये y प्लस dy, यहाँ का प्रेशर p, ये वाला p प्लस dp, फिर एलिमेंट पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे, याद है हमने ऐसे अप्लाई किया था, इस साइड क्या Yes, sir. हाँ सर। इधर क्या आया था, ये वाला जो था p प्लस dp इंटू एरिया, सीधा डेरिवेशन, और ये वाला क्या है p इंटू एरिया और dmg, और यहाँ पे g की जगह विल बी g cos अल्फा। सो उससे यही रिलेशन आएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा यार, कैन एनीबॉडी टेल कि हॉरिजॉन्टल P2 is equal to P3 plus rho A naught minus G sin alpha. चलो ठीक है, एक मिनट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा के देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये एलिमेंट हमने बाहर निकाला, ठीक है, इस साइड यहाँ से ये वाला x पे यहाँ पे प्रेशर p है, तो इसको आप लिखोगे p इंटू एरिया। इस साइड यहाँ का प्रेशर वही निकालना है आपको, प्रेशर का वेरिएशन dp इंटू एरिया। और कौन सा फोर्स आएगा इस एलिमेंट पे, g का, Sir, g sin alpha. G sin alpha. ओके, तो ये हो जाएगा dmg sin अल्फा, और इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है a नॉट। अब इस पे न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन बताओ, p इंटू a माइनस p प्लस dp इंटू a माइनस dmg sin अल्फा इज इक्वल टू dm इंटू a नॉट। dm को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम a इंटू dx, डेंसिटी a dx लिखेंगे। सबसे क्या कैंसिल होने वाला है, एरिया, क्या आएगा p माइनस dp, सबसे एरिया कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा ऊपर वाले टर्म में, माइनस Rho d है। g sin अल्फा Okay, sorry. d, क्या जाएगा, नहीं रो भी तो है, हाँ, रो g sin अल्फा इंटू dx, और इधर क्या बच जाएगा, रो a नॉट dx, ये गया। तो dp इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस रो, ये क्या बन रहा है, a नॉट प्लस g sin अल्फा dx। Sir, A. तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिलेशन क्या आने वाला है यहाँ पर, टू और 3 पॉइंट्स के बीच में, या था रो a नॉट dx था ना हमारा डेरिवेशंस। Sir, P2 is equal to P3 minus कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, 2 या 3? 2 पे ज्यादा होगा, तो जो है 2 का प्रेशर विल बी, इफ यू कॉल दिस एज h, दिस एज l, तो P2 इज इक्वल टू P3 प्लस रो, हाँ, A naught plus D sin alpha. a नॉट प्लस g sin अल्फा इनटू L. l। P2, हाँ, P3 का प्रेशर क्या होगा, 0.3 का प्रेशर, P naught. ओके, 0.3 का P नॉट, 0.1 का प्रेशर, P naught. P नॉट। अब ये तो आ गया 2 और 3 में रिलेशन, और 1 और 2 में क्या रिलेशन था, P2 P naught plus rho g cos alpha h. रो g cos अल्फा इंटू h, ओके, फिर इक्वेट कर दो, और ये दोनों एटमॉस्फेरिक ही हैं, ये वाले, ये तो इक्वल कर रहे हैं हम, और ये एटमॉस्फेरिक है, तो दैट मींस यू आर इक्वेटिंग दिस टू। इससे निकालो आंसर गाइस, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड। So can we subtract the equation also? हाँ देखो, ये तो इक्वल ही हो गया, ये दोनों, ये भी इक्वल, तो इक्वेट दिस टू। Okay. हाँ,
Sir, I had a doubt in this. Yes. It is लिखा है कि a fluid container is containing liquid is accelerating upward with acceleration a. तो आपने जो second step किया है उसमें आपने g sin alpha और एक बार क्यों लिखा? Let's say force F is applied on one side. F minus mg sin alpha is equal to ma naught. So ma naught is already accommodating for g sin alpha. Why are we repeating it? अरे नहीं, अरे एलिमेंट ये वाला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे वेरिएशन ले रहे थे तो इस साइड ये हो गया P into एरिया, राइट? हाँ हाँ क्लियर, वो तो क्लियर है सर, सिर्फ आपने ये क्यों और एक बार लिखा वो मुझे समझा नहीं। रो जी अरे साइन इसमें जी साइन अल्फा भी तो आएगा, ग्रेविटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, रो जी साइन अल्फा और इसका एक्सेलरेशन ए नॉट। नहीं सर, क्या ए नॉट उस जी साइन अल्फा के लिए ऑलरेडी अकोमोडेट नहीं कर रहा? नहीं बोला गया ना, वो एक्सटर्नल एजेंट ए नॉट एक्सेलरेशन से उसको खींच रहा है। अच्छा सर, इधर लिखा है एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। करेक्ट, तो इसमें जो है एक्सटर्नल एजेंट, सम एक्सटर्नल एजेंट इज पुलिंग दिस अप विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट। अच्छा ऑलराइट, तो द फोर्स इज अप्लाइंग ऐसे ए नॉट की तरह एक्सेलरेशन, इसलिए जी साइन अल्फा अकोमोडेट ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है क्लियर। हाँ सर, एल और एच कैंसिल नहीं हो पाएगा फाइनल आंसर। somebody इसमें प्लीज से अरे नहीं, h by l तो tan थीटा हो जाएगा। h by l tan थीटा हो जाएगा। ओके सर। तो आंसर क्या आ रहा है इससे? सर क्वेश्चन में एक्चुअली 2 बार डेंसिटी का सिंबल यूज किया है। डेंसिटी का सिंबल 2 बार यूज किया है? नहीं सर, एक ही टाइम है, मतलब रो ही है। सर हम डायरेक्टली वो 2 और 3 में वो रिलेशन क्यों नहीं लगा सकते? P2 is equal to P1 plus rho A naught L, मतलब हम लोग ने इतना सब क्यों किया? नहीं, किसके बीच में you want to apply? सर 2 और 3 पॉइंट। 2 और 3 के लिए, अरे 2 और 3 के लिए तो आपको ये वेरिएशन जज करना पड़ेगा ना, ये वाला, ये वेरिएशन डेवलप करना पड़ेगा। तो हाउ विल यू अप्लाई बिटवीन 2 एंड 3? तो हम लोग नेट एक्सेलरेशन को A naught minus G sin alpha लिख देंगे। नहीं, G sin alpha is the component of force, no, तो ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी का कंपोनेंट है। प्लीज, वो एक्सेलरेशन का पार्ट नहीं है ना, वो तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है। फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस फ्लूइड एलिमेंट। ओके सर, गॉट इट। मतलब वो रिलेशन हम तभी लगाएंगे ना जब एक सिंगल एक्सेलरेशन से जा रहा हो बॉडी स्ट्रेट लाइन में। कौन सा वाला जो हमने जो निकाला था, जो जो बेसिक डेरिवेशन? हाँ, उसमें क्या था भाई, उस डेरिवेशन में जो हमारा ये था कि भाई ये कंटेनर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रेविटी ऐसा है ना, और कोई फोर्स नहीं है। तो हमने चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, उस फ्री बॉडी डायग्राम में ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा था, राइट श्रेयांश? ओके सर। हाँ, नेक्स्ट, जयशंकर, अंडरस्टूड? यस सर। सर इसमें जो सेकंड इक्वेशन है उसमें रो के पहले नेगेटिव साइन होना चाहिए ना? Oh, you're saying this one? यस सर। अरे नहीं, यहाँ पर जो है कैसे आया, देखो यहाँ पर कि जो है dp, ये वाला इक्वेशन ऐसे आ गया, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट 2 पर है ना, 2 पे प्रेशर इज P2, जैसे ये वाला पॉइंट x2 ऐसा ले, x ऐसे ले रहे हैं अलोंग द प्लेन, हाँ, x2 पे प्रेशर क्या लिखोगे? P2, और x1 पे, या इसको x1 लिख लो और इसको P1 लिख लो, और ये x2 लिखोगे और इसको P2 लिखो। ये कौन सा था यार? 2 and 3 था ना, सॉरी ये 3 है, 3 कर दो इसको, और ये वाला कौन सा है? ये वाला 3, ओके x3, और ये वाला 2 और ये वाला भी 2 लिखो। चलो हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा? P2 माइनस P3 इंटीग्रेशन के बाद, यस। और राइट हैंड साइड में x2 माइनस x3 आएगा और एक माइनस साइन है, तो x2 माइनस x3, और हम कैसे मेजर कर रहे हैं? यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो हाँ ओके सर, मैंने वो उल्टा डायरेक्शन दिया। माइनस करोगे तो क्या होगा? x3 माइनस x2 हो जाएगा ना, और x3 माइनस x2 इज ये वाला डायमेंशन व्हिच इज L। गॉट इट, थैंक यू।
सर यस, हम इसको न्यूटन लॉ से नहीं कर सकते क्या? ये न्यूटन लॉ ही तो था। नहीं, हम लोग ने कल वैसे सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना के किया था ना एक से, इस लास्ट वाले के लिए। फ्री बॉडी लाइक मतलब क्या अप्लाई करना चाहते हैं उसमें? एक डीएम एलिमेंट लेने का मास का और फिर उसके ऊपर फ्री बॉडी लाइक फोर्सेस इक्वेट कर देने। हाँ, उससे भी हो सकता है कि आपको जस्ट ये इंश्योर करना पड़ेगा कि नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स मस्ट बी मास के रिस्पेक्ट में लेना है फिर सूडो फोर्स अकाउंट करके। हाँ, ये इंश्योर करना कि ना, वो ट्राई करना, बताना नेट फोर्स ना जो है ना, उसमें ये इंश्योर करना कि नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आना चाहिए। हाँ, ओके सर। उसके फ्रेम में चले जाना, देखो वेसल के फ्रेम में जाना, वेसल के फ्रेम में नेट फोर्स निकालना, पूरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नेट फोर्स, और वो नेट फोर्स ना उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है, फिर कौन सा कर रहे थे हम? गाइस, यू वांट मी टू ट्राई दैट मेथड, वो जो वाला? स्टूडेंट्स, वो जो ही सेइंग सेकंड मेथड शुड वी ट्राई और Yes, sir. Let me try this. What's the second method? वो ही सेइंग कि वो एक एलिमेंट लेते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वो बच्चा कह रहा है ना अभी। Yes, सर बट वो तो कुछ ज्यादा ही फंडामेंटल पे हो जाएगा ना, हमने तो प्रेशर इक्वेशन डिराइव कर ली। हाँ, लेकिन ठीक है, चलो कर ही लेते हैं, चलो 5 मिनट बन जाएगा। देखो भाई, इसमें वो बच्चा कह रहा है कि इसमें ये वेसल ले लेते हैं और चलो ये ऐसा, और ये लिक्विड, तो ये सेइंग एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मॉलिक्यूल पे नेट फोर्सेस दिखाते हैं, है ना? तो ये कौन सा है? वी आर सॉल्विंग इन ट्रॉली फ्रेम, हाँ, सॉल्विंग इन जो भी है बकेट फ्रेम, बकेट फ्रेम। वैसे याद है हमें जब भी ये वाला, पहले तो ये रेस्ट पे था तो सरफेस ऐसा आता है, नेट फोर्स एक ही है डीएमजी, और सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर हमने इसको एक्सीलेट कराया था तो ऐसा हो गया था, ये जब ये एक्सीलेट हो रहा था ए नॉट, तो उसमें भी जो है ये सूडो फोर्स दिखाया हमने डीएम ए नॉट और डीएमजी दिखाया, और नेट फोर्स ये वाला, ये नेट फोर्स आ गया था दोनों का रिजल्टेंट, और नेट फोर्स के परपेंडिकुलर हो गया सरफेस, है ना? चलो ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। जैन, क्या क्या आएगा फोर्सेस बताओ? सर एक तो सूडो फोर्स आएगा एम ए नॉट, एमजी आएगा, एक मिनट, एमजी कॉस अल्फा हो गया, सूडो फोर्सेस, तो सूडो फोर्सेस को सूडो फोर्स और डीएमजी साइन अल्फा को क्लब कर लेता हूँ, चलेगा ना? हाँ सर, यस सर। डीएमजी साइन अल्फा प्लस ए नॉट, सूडो फोर्स को और इसको क्लब कर लिया, तो उससे नेट रिजल्टेंट जो आएगा ये वाला आएगा, नेट रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा यार, ये वाला डीएफ नेट, और ये सरफेस जो है ना, ये नेट रिजल्टेंट हो गया, और सरफेस जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये वाला एंगल इज थीटा, वी वांट टू फाइंड। ओके, ये थीटा, और तो व्हाई सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, नहीं समझा। ओ अरे, मॉलिक्यूल पे कोई विस्कस फोर्सेस नहीं है ना भाई, तो अलोंग द सरफेस कोई फोर्सेस नहीं है, जो भी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स लगाएंगे उस पे कैसे लगाएंगे? परपेंडिकुलर सरफेस लगाएंगे ना। ओके सर, समझा। हाँ, अब ठीक है, फिर वो जो है आपका ये इधर आ गया, ये थीटा, ये भी थीटा, और 90 माइनस थीटा, और ये वाला थीटा। चलो ठीक है यार, तो अब जो है, हाँ, तो फिर ये कैसे आएगा यार? इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस बाय दिस ना, ये वाला ना? यस सर। कितना होगा ये वाला? a plus g sin alpha em into g sin alpha। अरे हाँ यार, ये क्या? ओके ओके ओके, ये वाला dmg cos alpha है। हाँ चलो ठीक है, आंसर यही वाला है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Who was pointing out? What's your name? प्रेम सर। Okay, okay, correct. Good. ये ज़्यादा अच्छा है यार ये तो। Yes, sir. वही। Yes, sir. Yes, sir. One step, sir.
चलो ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो है फिर 13 वाला था। नेक्स्ट 13। सर बस एक छोटा सा डाउट था सर, लास्ट क्वेश्चन में वो नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, मतलब आप बता रहे थे, मैं उधर नहीं सुना। हाँ नहीं उसमें ना क्या था, एक मिनट बोलो द लास्ट पेज। देखो इसमें क्या था, फिर हमने हमारा यहाँ तक तो आ गया था डिफरेंशियल फॉर्म। फिर मैंने जैसे अमाउंट पूछा था ना कि हम उसको इंडिकेट करें, तो हमने क्या कर लिया कि भाई देखो ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट एक्स, 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, कौन सा 2 and 3 है ना। तो इसको बोल दिया ये वाला x3 पे प्रेशर इज P3 है ना, और x2 पे प्रेशर इज P2। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इंडिकेशन आ जाएगा P2 माइनस P3। राइट हैंड साइड में इसको इंडिकेट करेंगे तो x2 माइनस x3 आएगा। x ये वाला डिस्टेंस, हाँ x2 माइनस x3 आएगा, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पर। सर लिमिट्स तो P2 से P3 होगी ना, हमने P माइनस DP किया है। नहीं, इधर जो है वो करस्पॉन्डिंग है, ये x वाला साइड है, ये प्रेशर वाला साइड है। तो x3 के लिए P3, x2 के लिए P2 ऐसा। ओके सर, हाँ ओके थैंक यू सर। चलो हाँ। चलो गाइस फिर नेक्स्ट कौन सा था फिर हमारे पास 13 का। एक मिनट गाइस ये वाला कॉपी करो। तो 13 के लिए कैसे करोगे यहाँ पर। Sir, the force will be downward, right? Yes sir. ये ऐसा है ना कौन। So the force exerted by the water will be downward on the cone, right? फोर्स एक्सर्टेड बाय द कोन जो है कोन के सरफेस पे भी तो प्रेशर होगा ना। यस सर, ऑल साइड। अच्छा ओके, बॉटम का प्रेशर चाहिए समझा। अरे क्या पूछा क्या है यहाँ पर, द सर्कुलर कोन के ऊपर सर, मतलब कोन का जो सरफेस होगा सर उस पे क्या हाँ। प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो। स्लैंट हाइट पे पूछा है, करेक्ट हाँ। तो और कहाँ, और ये जो है ओपन है ना ऊपर वाला। यस सर ओपन है, बट एटमॉस्फेयर प्रेशर नेग्लेक्ट कर। ओके एटमॉस्फेयर प्रेशर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अरे हाँ तुम लोगों ने अब तो सिस्टम ये इसमें एलिमेंट्स कैसे लेते हैं मुझे बताओ, कैसे लेना है पड़ेगा एलिमेंट्स कोन के लिए, हॉलो कोन के लिए एलिमेंट्स। हॉलो कोन के लिए सर सर्कुलर वेरिएबल रेडियस। हॉलो कोन के लिए सर्कुलर रिंग लेते हैं ना। हाँ रिंग रिंग। चलो ठीक है। अब इसमें ये वाला लेंथ भाई यहाँ से x बोल लेते हैं, ये वाला ये लेंथ ना।
और ये dx, राइट? ऐसा ही ये एलिमेंट होता है। Yes, sir. चलो ये और ये वाला x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? x tan थीटा नॉट। सर x sin थीटा नॉट, राइट? sin थीटा नॉट ना सर, x sin थीटा नॉट। चलो और जो है अब यहाँ पर, हाँ फोर्स, ये सरफेस ऐसा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा, यहाँ का प्रेशर कितना आएगा एट डेप्थ x? प्रेशर विल बी Rho gx. Rho gx 0 प्लस रो जी, कितना होगा? वर्टिकल हाइट x sin थीटा। X sin theta. x sin थीटा। सर इट यहाँ विल बी x cos थीटा नॉट। हाँ सर cos थीटा होगा ना। Yes, sir. The height is. Oh हाँ yes sir, x cos theta. x cos थीटा, हाँ एडजेसेंट Oh, साइड yes, x sir. cos थीटा। हाँ तो ये वाला x cos थीटा हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन तो बताओ कैसे होगा? फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। Downwards. अरे सरफेस पे फोर्स किधर लगता है? So objects will be downwards, you know, liquids or liquid will push it downwards, no? वो कोन के नॉर्मल के अलोंग लगेगा। नॉर्मल उनके नॉर्मल के अलावा। अच्छा ओके, समझा सर। सरफेस पर नॉर्मल टू से। नॉर्मल के लॉन्ग लगेगा, ये नॉर्मल। सो df नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? प्रेशर इनटू एरिया। Yes sir. df normal will be pressure into area, what p into da। प्रेशर तो लिखा आपने रो जी एक्स कॉस थीटा नॉट, और एरिया कितना होगा इसका? एरिया, स्ट्रिप का एरिया, का एरिया क्या होगा? एरिया इज 2 pi x sin theta into dx। गुड, 2 pi x sin थीटा नॉट into dx, है ना? ये तो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप का इसको कट करोगे, ओपन करेंगे तो उसका लेंथ क्या आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस 2 pi x sin थीटा, और इसका थिकनेस जो है dx। ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। अब जो है इसके ये तो फोर्स तो वेक्टर है, इसका कंपोनेंट्स बताओ। ये कंपोनेंट्स, और ये वाला जो है दिस एंगल इज थीटा नॉट, 90 माइनस थीटा नॉट, और ये थीटा नॉट। सो हॉरिजॉन्टल वाला df df cos थीटा नॉट हो गया, और ये वाला df sin थीटा नॉट। वैसे इस साइड इधर भी तो वही आएगा। ओके, तो इसके बेसिस पे बताओ क्या निकालना है हमें? x वाले के बारे में बताओ क्या हो रहा है? x वाला इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, अपवर्ड फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स 2ds sin। तो ठीक है, नेट फोर्स आने वाला है, अपवर्ड्स आने वाला है भाई, ठीक है। F vertical will be integral of df verticals, df vertical will be integral of df sin theta naught, और df तो हो गया, df तो ये वाला है ना, df is this value। Sure, won't it 2ds sin theta or only ds sin theta? हाँ, अरे पूरे एलिमेंट में मिला के ले रहे ना एक साथ, आधा क्यों कट कर रहे हो? पूरा लो ना एक साथ, एरिया पूरा लिया है ना यार। ओके सर। हाँ, एरिया जब पूरा लिया है पूरा लो। अब ये कितना हो जाएगा? df की जगह रो जी एक्स कॉस थीटा नॉट 2 pi x sin थीटा नॉट, ये हो गया df, और इनटू sin थीटा नॉट। अब इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, तो रो जी बाहर, और क्या बाहर आ रहा है? 2 pi बाहर। सर x dx को छोड़ के सब कुछ बाहर आया। यस सर, आप dx भूल गए। कुछ रॉन्ग है क्या यहाँ पर? 2 pi dx तो dx नहीं ले। सर एरिया वाला टर्म 2 pi x sin theta dx, ओके वो नीचे एक अभी लिखा ओके सॉरी। ओके, नहीं मेरी गलती, ठीक है। हाँ, sin थीटा नॉट बाहर, sin स्क्वायर थीटा नॉट बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है? x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx x स्क्वायर dx, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है?
0 to h. 0 to h. 0 to L slant height. 0 to Sorry. L ना. Okay. अब rho g 2 pi cos theta naught sin theta सर naught. या फिर अगर हम sin square थीटा को अंदर लेके 0 to h वेरी करवा सकते हैं ना? करेक्ट करेक्ट, हाँ एक मिनट जाओ, वही करने वाला हूँ, अल्टीमेटली वही आने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है एक मिनट, हाँ तो इसको जो है अपन वही करने वाले हैं कि चलो ये साइन थीटा नॉट लिखा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यार, यहाँ पर L क्यूब बाई 3 ना, ऐसा लिख लिया। चलो अब रो जी 2 पाई L cos थीटा नॉट L sin थीटा नॉट L sin थीटा नॉट बाई 3, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यार, यहाँ पर L cos थीटा नॉट क्या होगा, L, this L is the whole tan height, h L Yes, cos right. theta, ओके, तो रो जी 2 पाई ये वाला होगा h, और ये वाली वैल्यू r बाई 3, तो ये कितना हो गया फिर 2 पाई बाई 3 r स्क्वायर h और रो जी, ठीक है ना ये वाला। Yes. अब somebody tell me second method, यहाँ पर हमने क्या निकाला है, फोर्स एक्टिंग ऑन slant walls of foam by liquid. So why did we take only the vertical component? Because देखो यहाँ पे देखते हो तो ये वाला एलिमेंट में फोर्स ऐसा है, इधर वाले पे ऐसा है। अच्छा ओके सर, कैंसिल आउट हो रहा है हॉरिजॉन्टल। ओके सर कैंसिल आउट तो छोड़ के सर क्वेश्चन में वर्टिकल ही पूछा है, अपवर्ड फोर्स ही पूछा है वैसे भी, और हमने प्रूव भी कर लिया ना कि वर्टिकल ही आएगा। यस सर, वर्टिकल डायरेक्शन ही। ओके, मेथड 2 कौन बता रहा है? सर मैं ट्राई कर रहा था एवरेज फोर्स निकालने का, पर सर इसको कैसे करेंगे सर? एवरेज वाला तो हाँ यार, इसमें एवरेज तो से कैसे करेंगे? चलो ये जल्दी कॉपी करो, विल डिस्कस सेकंड। सर हमने सर df sin थीटा ही क्यों लिया था, 2df sin थीटा क्यों नहीं लिया? ओ नहीं, देखो हमने जब लिया ना यहाँ पर ये एरिया क्या लिया, 2 पाई आर लिया, पाई आर थोड़ी ना लिया है, ये पूरा 2 पाई आर लिया है ना। यस सर। तो 2 पाई आर लिया, तो इसलिए जो है मतलब आपने पूरे, आपका इंटरेस्ट क्या है, पूरे स्ट्रिप पे है, राइट? यस सर। पूरे स्ट्रिप पे है, तो पूरे स्ट्रिप में जब देखते जा रहे हो, डीएफ को करते जा रहे हो, तो यू विल फाइंड दैट कि सबके हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ वर्टिकल्स पे ही है। तो 2 df sin थीटा है ना उधर, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। हाँ ना, वो तो शो करने के लिए, यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसा और ऐसा आएगा, इधर वाले के ओके सर, समझ गया। ऐसा आएगा, तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ वर्टिकल्स पे है, आप सब वर्टिकल्स को ही सम कर रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, Hello, sir. यस, हाँ, Sir, I had an alternate method, so can I ask you if it's fine? यस, हाँ, प्लीज कर। So, sir, if we see the water का entire mass, so on that there will be a mg force of the water का mass downward. Then there will be an एक मिनट जाओ, एक मिनट, हाँ वेरी गुड, हाँ यू बात है, एक मिनट जाओ, ये सबको कॉपी करने दो। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जो कोन का जो बेस है उस पे मतलब डायरेक्टली फोर्स इक्वेट कर सकते थे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। कोन के बेस पे? हाँ सर। लेकिन तुम्हें तो स्लैंट वाइल्स का निकालना है ना, एफबीडी किसका बना रहे हो ये बताओ?
सर पर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो वर्टिकल फोर्स विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। नहीं, इसमें जो है यू आर सेइंग, पहले तो मुझे ये बताओ कि एफबीडी किसका ड्रॉ कर रहे हो, थोड़ी सी आपका सिस्टम कौन सा है? मतलब सर नो नो, यू आर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, आई एग्री। तो एफबीडी व्हिच इज योर सिस्टम, किस पार्ट पे यू आर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ टू फाइंड द फोर्स बाय द स्लैंट वॉल्स? एफबीडी किसका बना रहे हो? मतलब पूरे कोन का सर, एक साथ। एफबीडी ऑफ द कोन, ठीक है, एफबीडी ऑफ कोन, तो ठीक है पूरे कोन पे, लेकिन कोन का एफबीडी बनाओगे तो फिर कोन का मास भी चाहिए हो, राइट? ना, कोन का एफबीडी। हाँ यस सर, यस सर। तो वो बच्चा अभी जो पॉइंट आउट कर रहा था ना, ही सेड कि एफबीडी ऑफ सो वाटर का मास किया था मैंने। कोन शेप्ड, हाँ वो बच्चा क्या बोल रहा है, कोन शेप्ड वाटर, जो कोन शेप्ड वाटर है अंदर जो है ना, कोन का शेप का वाटर, मतलब दो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। तो एफबीडी ऑफ कोन शेप्ड वाटर इनसाइड कोन, ठीक है। देन व्हाट इज डूइंग कि जैसे ये जो है आपके पास, ये ऐसा कोन, और इसके ऊपर जो है ये वाला, ये कोन का मान लो ये ऐसा है, हमने सेपरेट कर लिया, इमेजिनरी ड्रॉ कर रहे हैं वाला, ये वाला डॉटेड लाइन इज द कोन, और ये जो हमने नीचे बनाया है वो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो उसके अंदर है, डेलिबरेटली ऐसे कांटेक्ट में है, हम उसको अलग ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी शो करेगा, एक्टिंग ऑन द बॉडी। हाँ, तो इस पे पहला वो शो कर लेगा एमजी, एमजी विल शो। फिर यहाँ पे बेस पे कोन जो है, कोन ये बेस से फोर्स लगाएगा भाई, कैसे फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय बेस, फोर्स बाय कोन ऑन वाटर। कैसे कैलकुलेट करोगे फोर्स बाय कोन वाटर? यहाँ का प्रेशर पता है आपको, क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया से। यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर पूरे बेस पे रोजीएच ही थोड़ी लगेगा। अरे पूरा बेस कितने डेप्थ नीचे है, एच डेप्थ, तो हर सब बार पूरे एरिया के ऊपर हाइट वाटर का हाइट एच थोड़ी है। ओहो ऐसा नहीं सोचना है ना। ओहो ओके, मानवी यू हैड अ डाउट, सेम डाउट, राइट? यस सर। व्हाट वाज दिस, एक बार, हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना है। देखो यहाँ का पार्ट जो है, यहाँ पे जो खाली है ना ये वाला, यस सर, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो ये वाले स्लैंट वॉल्स पे नेट वर्टिकल फोर्स तो ऊपर लग रहा है, स्लैंट वॉल्स पे वर्टिकल वाला ऊपर लग रहा है, डीएफवी। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वही स्लैंट वॉल्स यहाँ के लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे किधर फोर्स लगाएंगे? ओके सर, तो मतलब वो प्रेशर में वो वर्टिकल फोर्स मटेरियल भी कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ, ओके सर, समझा। तो अब जो है, तो हम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ देखो यहाँ पर, अगर लिक्विड कोन पे ऐसा फोर्स लगा रहा था डीएफ नेट, तो कोन लिक्विड पे इधर लगाएगा डीएफ नेट, ऐसा सेम। हाँ, एक्शन रिएक्शन पे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कोन वॉल्स का फोर्स इस पर वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोन वॉल्स, ये कोन वॉल्स का फोर्स नीचे आ गया। अब इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इक्विलिब्रियम में अपवर्ड और डाउनवर्ड लिखोगे। अपवर्ड फोर्स क्या है, फोर्स बाय कोन बेस ऑन वाटर, और डाउनवर्ड क्या है, mg प्लस f जो है कोन वॉल्स का, mg इज क्या है यहाँ पर, mg का कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 ऑफ ये ना, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर h/3 इनटू g प्लस ये अननोन है कोन वॉल्स का, और ये वाला वैल्यू हमने, ये तो पता है भाई, ये कितना था, रो जी एच पाई आर स्क्वायर। अब इससे निकालो, ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड?
Yes, sir. आपने क्या डाउट एक्सप्लेन किया, वो डाउट एग्जैक्टली था क्या, समझ नहीं आया। सर अरे हाँ, नहीं, उस बच्चे का ही डाउट था कि वो कह रहा था कि सर आपने बोला कि प्रेशर तो जो है क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड अबव होता है ना। तो वो कह रहा है कि सर यहाँ का प्रेशर तो आप बोल दोगे ऐसा, और ये वाला पार्ट ओपन भी है यहाँ पर ना, स्मॉल होल है। तो सर अगर मैं ऐसा देखूं, यहाँ का अगर आप बोलते हो सेम लेवल पे प्रेशर इक्वल है यहाँ पर और यहाँ पर, तो स्लैंट वॉल्स की वजह से क्यों ऐसा आ रहा है? हम बोलेंगे ना स्लैंट वॉल्स का भी तो फोर्स आ रहा है ऐसा, जो यहाँ पर उसको, तो वो ये इंश्योर करेगा कि इस सेम डेप्थ पे, सेम जो इस पोजीशन पर प्रेशर कैसा रहे, सेम है। यस सर। हाँ सर नहीं समझा। अरे देखो, सपोज ये जो है, ये मान लो ऐसा वेसल है ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ का प्रेशर आप बोल सकते हो एच डेप्थ नीचे, एच डेप्थ नीचे, एच डेप्थ नीचे, ऐसा हो जाएगा सेम। यस सर। ठीक है, अब मान लो ऐसा लिया किसी ने वेसल, ये वाला वेसल, अब वही बच्चा बोल रहा है कि भाई सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये पार्ट ओपन है, तो यहाँ के ऊपर जितना पानी है वही यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये सब का प्रेशर सेम है ना। बट यहाँ पे भी प्रेशर इसके इक्वल हो जाता है, सेम डेप्थ पे है ना, इक्वल होता है, तो उसको ग्रेविटी से कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये स्लैंट वॉल्स, ये भी तो फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना स्लैंट वॉल्स का। तो ऑल्दो आप इफ यू आर सीइंग कि इसके ऊपर वाटर का डेप्थ लेवल कम है, लेकिन स्लैंट वॉल्स का फोर्स है, तो वो इंश्योर कर रहा है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कैसा रहे, सेम रहे। यस सर। चलो ठीक है गाइस, इसमें किसी को डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं। तो सर मतलब उसके लिए आपने एवरेज प्रेशर रो जीएच करके इनटू एरिया कर दिया आपने? नहीं, एवरेज नहीं किया मैंने, तो ये तो हम प्रूव ही कर सकते हैं ना कि जो है यहाँ का ये सेम लेवल पे प्रेशर का वेरिएशन आएगा ही नहीं। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, यू टेक एलिमेंट, अगेन एलिमेंट यहाँ से x, ये तो आपने बेस प्रेशर निकाला ना सिंपली। यस हाँ, बेस प्रेशर निकाल लिया, तो बेस प्रेशर मैंने वर्टिकल डायरेक्शन से निकाल लिया भाई। यहाँ पे 0 है, 0 प्लस रो जी एच, 0 प्लस रो जी एच, एच डेप्थ नीचे है। ओके सर। और फिर 0 प्लस रो जी एच, और फिर मैंने न्यूटन्स लॉ लगाया, एक ऐसे एलिमेंट्स लिया और ये से यूश इंश्योर कर दिया कि पूरे यहाँ पर प्रेशर सेम है ना, न्यूटन्स लॉ से प्रेशर सेम, तो फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। देवेश अंडरस्टूड? हाँ सर, समझ गया। ओके। चलो ठीक है गाइस, ये वाला ठीक है। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? ये सब एवरीबॉडी कॉपी? यस सर। ओके यस सर। चलो ठीक है। हाँ, कुछ इलस्ट्रेशंस के भी करते हैं ना सब। क्या यू गाइस हैव इलस्ट्रेशंस? फाइल ओपन। यस सर। यस हाँ, प्लीज ओपन क्लास इलस्ट्रेशंस PDF 1। ग्रुप में कोई पोस्ट कर दो करंटली प्लीज। So we have not started the solving illustrations, right? Yes, we are just solving. Okay. पहला क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट अभी तक जो हुआ प्लीज टेल स्टूडेंट्स। As we have changed, किसी को ये तो नहीं आ रहा ना इसमें? ठीक है, ये वाला इसमें शेयर ये वाला व्हाइट बोर्ड। So that normal board was better. Yes, sir, it was better. Much better. Yes, sir, better. Better is that board manual.
Yes, sir, manual board. Shankar, you're also saying, you said कि that's why I changed. Yes, sir, board is better. No, क्या बोल रहा है sir? Sir, on whiteboard there is more interaction. I Yes, feel. Yes, sir. it's a Yes, sir. free आदत White हो board. गई है अब उसकी सर 6 महीने से. Okay, okay. So I should move on to the back, same one, na? जो previous one, old one, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please move to Please. the previous. Sir, you can disconnect the whiteboard and continue with board now. Sir, No, do sir, it you do next from lecture. next Not class. now, Yes. sir. No, Next sir. Continue with this one. Not from now, sir. Next class. और ठीक है, I can do now. ये आप लोग तब तक ये वाला one वाला try करते रहो. एक मिनट, हाँ, I'll change the setup. आयुष इसका पूरा screenshot you have taken, ना? Yes, sir, I have already. Okay, okay.
Hello students. Yes, sir. We can hear you. Yes, sir. Yes, sir. Okay guys, first वाला आप लोगों ने ट्राई किया आयुष? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर सकते हैं क्या आप? सेकंड Yes, sir, please. सेकंड पार्ट हाँ, तो सेकंड पार्ट मैच नहीं हो रहा. सेकंड वाला फर्स्ट पार्ट हो सर गया। हो रहा है मैच। एक मिनट रुको, देखो इसमें जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट के लिए क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स, नहीं, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ना। So first part का आंसर मुझे 4 न्यूटन आ रहा है. नहीं सर आ रहा है। नहीं सर आ रहा है. तो wait, फर्स्ट और atmospheric pressure सेकंड भी लेना दोनों है. मैच हो Sorry, रहा है sir. सर। हाँ, एटमॉस्फेरिक. ये ऐसा है ना, तो यस आप सर। हाँ इसमें कौन सा ले रहे हो फिर, ये वाला जय? So first part में तो P नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए है. हाँ सर इंटू ए फिर आ जाता है पूरा। P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया। हाँ, ये वाली वैल्यू जो है फोर्स बाय द बेस, ये हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं, एफबीडी ऑफ चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, चंक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है उसका। तो ये P नॉट प्लस रो एफ बेस, P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है? 204 न्यूटन. दिस इज 204 न्यूटन। ये इसका हाँ, भी वही, यहाँ पर तो ये फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर P नॉट इनटू एरिया, P नॉट 10 टू पावर 5, एरिया कितना है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 into 10 to power minus 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, F नॉट सर 200 200। और फिर mg5 आता है। इसका जो है, इसमें हाफ लीटर है, 1 लीटर वाटर का 1 kg है, तो हाफ kg, तो mg इज 0.5 into 10, ये हो गया 5। अब हाँ जो सर है उससे आंसर 1 आ। फिर क्या निकालना था, फाइंड द रिजल्ट को साइड वॉल्स का। हाँ, साइड वॉल्स का देखो, साइड वॉल्स का कैसे निकालोगे आप? साइड वॉल्स में जो है आपके पास इतना, इतने यहाँ से तक है ना, यहाँ ये वाला वाटर और ये ऐसा। अब इसको साइड वॉल्स का फोर्स किधर आएगा गाइस, इसमें साइड वॉल्स का फोर्स अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? अपवर्ड. पहले तो उसका इश्यू है नहीं, यू कैन टेक इट एज अ अननोन, न्यूटन्स लॉ विल गिव इट सो विद साइन, तो इसको साइड वॉल्स का अपर ले लेते हैं। साइड सर अपवर्ड्स नहीं समझा क्या इसको? हाँ सर देखो एक मिनट, पहले अगर मान लो साइड वॉल्स का यू वांट टू टेक डाउनवर्ड्स, ठीक है भाई, अगर डाउनवर्ड लोगे तो साइन के साथ देखना, अगर पॉजिटिव आता है तो व्हाट यू हैव अज्यूम्ड इज करेक्ट, अगर नेगेटिव आता है तो इसके उल्टा। अब अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लेंगे, व्हाट इज अपवर्ड फोर्सेस, कौन कौन से हैं, ये वाला एक दिख रहा है 204, डाउनवर्ड में कौन कौन सा आ रहा है, ये दिख रहा है 200, डाउनवर्ड में और कौन सा है, ये वाला 5, और ये वाला भी डाउनवर्ड में, अगर आपने ऐसा अज्यूम किया है साइड वॉल्स का नेट फोर्स, ये ऐसा, तो इससे साइड वॉल्स का नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइड नेट -1, -1 मींस जो आपने एज्यूम किया है उसके अपोजिट। अब इसका रीजन भाई ऊपर क्यों आ रहा है, ठीक है, ऐसी एलिमेंट्स लोगे, ये वाले एलिमेंट्स जो हमने याद है हमने स्ट्रिप्स बनाए थे ऐसे, ये तो अनइवन सरफेस है, तो ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे जो फोर्स आएगा साइड वॉल्स का ना, तो साइड वॉल्स का इस पे फोर्स, वाटर का साइड वॉल्स पे तो नॉर्मल इधर होगा, साइड वॉल्स का इस पे ऐसा आएगा, ठीक, जिसके दो कंपोनेंट्स आने वाले हैं, dfx dfy, इस साइड भी ऐसा है df, इससे दो कंपोनेंट्स dfx dfy, ठीक है। ये तो यहाँ तक ऐसे चलेगा, लेकिन जैसे नीचे आओगे यहाँ पर इस रीजन में, दिस इज df, उसके कंपोनेंट्स dfx dfy, यहाँ पर सेम, हाँ, df dfx dfy। अब x वाला तो कैंसिल हो जाएगा, x वाले पे इशू है ही नहीं, इशू इज ऑन किस पे, y वाले पे, वर्टिकल पे। तो वर्टिकल पे कौन सा, अब इधर के इसके इस लाइन के ऊपर वाले का जो है वर्टिकल वाले डाउनवर्ड्स हैं, इस लाइन के नीचे वाले वर्टिकल अपवर्ड्स है, कौन से ज्यादा होंगे, एंड बाय तो डाउनवर्ड्स वाले ज्यादा होंगे, हाई प्रेशर होगा इसलिए।
यस, डाउनवर्ड्स वालों का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए डाउनवर्ड्स वाले ज्यादा होंगे। तो नेट जो है किधर आएगा अपना, ऊपर ही आएगा। Therefore, ये जो एफ नेट बाय साइड वॉल्स will be in upward direction. सर मुझे डाउट है। हाँ, सर आपने वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करके एफ नेट ऑन साइड वॉल्स कैसे निकाला, मैं वो नहीं समझा। उसमें तो साइड दोनों वॉल से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आएंगे ना। हाँ हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जा रहे हैं, यस सर। तो बचे वर्टिकल्स। तो सर आप बोल रहे हैं कि वर्टिकल वॉल्स पे बस, सॉरी हॉरिजॉन्टल वॉल्स पे वर्टिकल फोर्स। नो नो नो, आई एम सेइंग कि जो है net horizontal components are cancelling out, only vertical components are remaining. ओके सर, ओके सर। और वर्टिकल में भी भाई देखो, ये वाला और ये वाला डाउनवर्ड्स वाले ज्यादा हैं, तो नेट ऊपर आएगा। ओके सर, गॉट इट। चलो हाँ, नेक्स्ट सेकंड। लाइक आपने ये कैसे निकाला कि अपवर्ड्स आएगा नेट? बोर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा सर सही। ओके, पहले तो ये समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। यस सर, बाकी स्टेप समझ गए। चलो हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल आउट हो गया। अब वर्टिकल वाला देखते हैं। अब वर्टिकल वाला जो डीएफ है, डीएफ कैसे निकालोगे? डीएफ इज प्रेशर इनटू डीए। यस सर। प्रेशर इनटू डीए। अगर स्ट्रिप्स ऐसे ही स्ट्रिप्स यहाँ पे लेते हो, तो कहाँ पर जो होगा, नीचे वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, रो जी एच के अच्छा आ रहा है। ओके, गॉट इट। हॉरिजॉन्टल अंडरस्टूड सर। नीचे वाले ज्यादा होगा तो नीचे वाले का नेट ऊपर आएगा। ओके नीचे सर। वाले सर आप बता सकते हैं मैंने सेकंड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट किया? सेकंड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगलेक्ट क्यों किया है? हाँ सर, बिकॉज आंसर नहीं किया, टाइप कैंसिल हो रहा है ना, वो ऑपोजिट साइड पे है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो यू आर सेइंग कि ये तो लिया ना हमने नहीं कि सर, सेकंड वाले में, सर सेकंड वाले में, लाइक सेकंड सम, फर्स्ट वाला नहीं सर। So second question, yes. Second question. Find the force exerted by water on a 2 meter square plane surface of a large stone plate placed at the bottom of the sea, 500 deep. हाँ, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगलेक्ट, यहाँ पे नेगलेक्ट करना है, ऐसा दिया है, वो लिखा नहीं है। यू आर सेइंग राइट? हाँ सर, क्योंकि आंसर में निगलेक्ट किया उन लोगों ने, मतलब इतना मैसिव चेंज नहीं आता है बट किया उन्होंने निगलेक्ट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो लेट्स टेक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे ऐड कर लेते हैं, नेगलेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर यस हाँ, सर अपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो एफ नेट साइड है वो एफ बी डी ऑफ चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स में है, वो आर्बिट्री लिया था ना? पहले तो आर्बिट्री लिया था हाँ, और यस लेकिन सर, न्यूटन लॉ ने हमें साइन के साथ दिया। यस सर, यस सर, ओके। ओके, कैन आई रेज दिस वन? वेट सर, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके ओके, डन सर, डन सर, ले लिया। चलो हाँ, सेकंड वाला ट्राई करते। सेकंड आया। Yes sir. यस सर, डन। ओके, सेकंड आ गया, फिर थर्ड करो जल्दी। हेलो सर, यस। सेकंड क्वेश्चन में ओरिएंटेशन मैटर क्यों नहीं करेगा? नहीं, जैसे जो है, अगर कि मान लो जो डेप्थ है ना, सो सेकंड के लिए अगर कि आपका डेप्थ फिक्स हो गया भाई, ठीक है, मान लो अगर प्लेट ऐसा रखा हुआ है, फोर्स नॉर्मल ऐसा लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा रखा हुआ है, अच्छा ओके, रोटेट नहीं कर रहे हो उसको, सरफेस एरिया चेंज नहीं होगा। यस, नॉर्मल, और फोर्स कैसा रहेगा? नॉर्मल टू ओके ओके।
So can you explain the orientation वाला part again? विच वन? ओरिएंटेशन वाला? देखो, अगर मान लो सपोज आपका प्लेट ऐसा है, तो फोर्स कैसा लगेगा? नॉर्मल टू सरफेस, एफ नॉर्मल विल बी प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट, और प्रेशर जो भी आपका निकाला आपने रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट किया हमने यहाँ पर, इनटू एरिया ऑफ द प्लेट। फिर अगर मान लो आपने उसको ऐसा इंक्लाइन पे रख दिया, कुछ एरिया को ऐसा ऐसा ले लिया प्लेट को, अगेन फोर्स का डायरेक्शन चेंज जाएगा नॉर्मल, ठीक है, या फिर जो है नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन बस, हाँ नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज जाएगा एज पर द प्लेट। जैसे दिस इज द प्लेट, तो ये ऐसा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल प्लेट। अगर आपने ऐसा कर दिया तो नॉर्मल ऐसा आ जाएगा, लेकिन प्रेशर इनटू एरिया वो सेम ही रहेगा। Yes, sir. Got it. सेकंड क्वेश्चन में यस, हाँ सेकंड क्वेश्चन में, हाँ हाँ प्लीज टेल सेकंड क्वेश्चन क्या क्या। सेकंड क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है। सेकंड वाले में, हाँ सेकंड में ऐड कर लेना क्वेश्चन में, नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड वाला एक मिनट, हाँ थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में वाटर इज फिल्ड इन अ रेक्टेंगुलर टैंक साइड कितना, और कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप एरिया ऑफ 3/1। ओके, थर्ड वाले के लिए ये ऐसा, ये टैंक और इसका वर्टिकल साइड ऑफ एरिया 2/1। तो दिस इज अ वर्टिकल साइड ऑफ एरिया जो है 2/1 का है, और इसमें जो है देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कंसीडर वर्टिकल साइड ऑफ एरिया 2/1, ठीक है। और उसमें वाटर का कितना दिया है यहाँ पे, वाटर कितने हाइट तक है? सर 1 मीटर। वाटर इज 1, ओके, सो 3/2/1, ठीक है। दिस इज 3, दिस इज, और ओके ये वाला 2 है और ये 1 है, 1 ठीक है। ये वाला 3/2/1, 3 2 और ये 1 हो गया। तो इसमें अपन को कैलकुलेट क्या करना है? नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज गिवन, और they have asked us to find the total force by the water on the bottom of the tank. बॉटम पे फोर्स कैलकुलेट करना है। हाउ विल यू कैलकुलेट द बॉटम पे फोर्स? द प्रेशर इनटू एरिया करेंगे सर। ओके, प्रेशर इनटू एरिया करो। तो ए पार्ट के लिए फोर्स बॉटम पे है, प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर विल बी सिंपली रो जी एच, और एरिया विल बी 6 हो जाएगा। क्या एरिया विल बी 6। सर यहाँ पर mg से भी इक्वेट कर सकते हैं। इससे आ रहा है आंसर क्या? हाँ सर। यस सर। और फिर बी पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड तो टेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप विथ dx at, तो यहाँ, हाँ इफ दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, ओके वही वाला हो गया, x डेप्थ नीचे, यहाँ का फोर्स। डीएफ कैलकुलेट करना जो डेरिवेशन में किया था। हाँ सर, जो किया था ना हमने स्टार्टिंग में। यस यस, हाँ प्लीज कैलकुलेट दिस वन। एरिया विल बी 2dx, फोर्स फिर टॉर्क, बॉटम एज के वो, F will be integration of dx
और तो ठीक है, इंडिकेशन ऑफ डी टॉर्क ये वाला x, this will be 1 minus x. देखो इससे आंसर मैच हो रहा है। सर उस आंसर में x टर्म मिसिंग है सर, उसमें सिर्फ 1 माइनस x ही है टाउ के लिए सर। टॉर्क में कुछ मिसिंग हो गया क्या? नहीं बराबर है। हम लोग टॉर्क के लिए वो फोर्स इनटू आर नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ इंटीग्रिटी, कर सकते हैं। लेकिन हाँ उसमें हमने ठीक है यार, लेकिन वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो उससे निकाला था तो बेसिक ठीक है यार, उसमें एक हमें सर लास्ट इसमें सी पार्ट में इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिर्फ ये एरिया पर जो फोर्स लगा है उसका तो हाँ वही बोल रहा हूँ। अरे उसे उसी का निकाला सर तो वहां पर x मिसिंग क्यों है सर, मुझे समझ x वाला मिसिंग है क्या इसमें? सर वो लोगों ने इंटीग्रेट नहीं किया पूरा, वो लोगों ने बस ऐसे एक्सप्रेशन में किया है। अरे इंटीग्रेशन की बात ही नहीं है, पर x तो होना ही चाहिए ना। df हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ही होना चाहिए। df हाँ सर x होना चाहिए। ओके ओके ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट एक्स रहेगा। ओके फिर उसको इंडिकेट करके देखो कितना आता है। ये डी पार्ट सर हमने टॉर्क वाला भी डिराइव किया था। हाँ 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 हाँ। तो भाई पूरा नेट टॉर्क निकाल के देखो, नेट टॉर्क और नेट फोर्स चेक करो आंसर अपना आ रहा है कि नहीं। सर वो पार्ट का ही निकालना है टॉर्क, पूरे इसका नहीं। उसमें फिर लास्ट डी और ई पार्ट में टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क सर डी और ई में टोटल निकालना है। हाँ ये डी पार्ट है, डी पार्ट में टोटल फोर्स। सर वो तो पी एवरेज इनटू एरिया से कर सकते हैं ना। ओके ओके हाँ हाँ actually और ये ई पार्ट डी पार्ट। इसका आंसर मैच हो रहा है गाइस, ये वाला थर्ड का something same. फिर एक नेक्स्ट करो गाइस, ये वाला फोर्थ। फोर्थ थर्ड सबका आया ना गाइस? थर्ड किसी का डाउट प्लीज आस्क। थर्ड सबका आ गया था। सर हाँ डी वाले में इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, बस यही बता दीजिए। डी वाले में भाई हाँ। आपको फोर्स निकालना है। एक्स वेरीज फ्रॉम भाई यहाँ तक पानी भरा हुआ है तो 0 से 1 तक। हाँ कि बस यही 0 से 1 चाहिए था, मुझे डाउट था कि 0 से 1 है कि नहीं। सर लेकिन डी के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है इसके लिए क्या? हाँ एवरेज से भी कर सकते हैं, एवरेज से भी कर सकते हो करेक्ट।
फिर मैच हो रहा है, ओके। फिर जो है फोर्थ, डन सर। फोर्थ आल्सो तो डन, फोर्थ तो बहुत बार कर चुका। ओके। फिफ्थ, नेक्स्ट फिफ्थ, टाइम हो गया। एक लास्ट लास्ट एक लास्ट एक लास्ट ओके एक लास्ट। फिफ्थ आल्सो डन, yeah. I will erase this one. Ayush, take a screenshot on this one. Yes, sir. I've already taken. सर आज से फिफ्थ तक कर रहे हैं ना? Yes, yes, fifth. So sir, if we don't have doubts and we leave. Yes, guys. हाँ, जिसका इसका हो गया है, you guys may please leave. फिफ्थ तक करेंगे आज अपन। सर वो x बार इक्वल्स a नॉट बाय g ही अप्लाई करेंगे ना? नहीं नहीं, यहाँ पे तो अपन को फंडामेंटल से जाना पड़ेगा ना। पॉइंट्स मार्क करो, 1 2 3 4, ऐसा है ना। ये H2, ये H1, we have H2 minus H1 is L, ये वाला। I think L is the horizontal difference between the limbs. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Have to find टू the और थ्री के vertical. बीच का डिस्टेंस। ये वाला निकालना है, डेल्टा H निकालना है, और ये वाला L है यहाँ। चलो ठीक है भाई, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? P नॉट, और P2 का प्रेशर विल बी P नॉट प्लस रो वर्टिकल, हाँ वर्टिकल, रो जी H2। यहाँ का P4 इज P नॉट, यहाँ का प्रेशर विल बी P, ये P3 है, P3 हो गया, लिखोगे P नॉट प्लस रो जी H1। और 2 और 3 में भी यू कैन फाइंड 2 और 3 में 2 पे ज्यादा होगा प्रेशर, किससे ज्यादा होगा? 3 से। कितना ज्यादा होगा? रो ए नॉट एल। और P2 की जगह ये वाला यू राइट P नॉट प्लस रो जी H2। P3 का हो गया P नॉट प्लस रो जी H1 और रो ए नॉट एल। सो इससे, और यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, रो पहले हटा लो, रो भी हट जाएगा, और जी H2 माइनस H1 इज ए नॉट एल। और आपका फिर क्या जाएगा? डेल्टा H, हाँ जी डेल्टा H इज ए नॉट एल, डेल्टा H विल बी ए नॉट एल बाई जी। जय, ये वाला ठीक है ना? Yes, हाँ यस। सो बट इफेक्टिवली तो वही हुआ ना। लेकिन वो तो लेकिन वैसा इफेक्टिवली हुआ, लेकिन हमारे पास वो कांसेप्ट से हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? Sir, ओके समझा। और ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। hello यहाँ sir, sir. I have a doubt, sir. In the third question of the class illustration 1, sir, can you solve the E part once? थर्ड वाले का बी पार्ट, E wala, last wala, E. लास्ट वाला टॉर्क निकालना है, राइट? फाइंड द टॉर्क बाय वाटर ऑन द साइड अबाउट द बॉटम एज। Yes, bottom edge. तो थर्ड का ई पार्ट में टॉर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा? df इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, sir. और जो है df को क्या लिखोगे? रो जी टॉप से लिया था x, Yes, yes, I remember that. एरिया जो है 2 into dx, ये हो गया df। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर बॉटम के अबाउट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 minus x। तो ये रो
2 रो जी बाहर आ गया। So basically जो D part में क्या उसे इंटीग्रेट करना है? हाँ Okay sir, okay fine, I will do it sir. Rest. और 0 से 1 तक। हाँ 0 से 1, yes yes, height या ये कितना आ जाएगा 20,000 और ये कितना आ गया x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 1/2 माइनस 1/3 कितना होगा यार 1/6 1/2 माइनस 1/3 1/6 देखो फिर आएगा क्या हाँ सर आ गया ऐसा। ओके गाइस हाँ हाँ और टेस्ट में हाँ टेस्ट कैसा था गाइस इसमें सर अच्छा था सर इजी था सर, इजी बहुत था easy था। काफी उसमें कैसा स्कोर्स कैसे आ रहे हैं सर केयरलेस मिस्टेक्स, बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। हाँ सर हाँ सर बहुत इजी था स्कोर्स कैसे आए इसमें फिजिक्स सर के फिजिक्स की मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक हुआ है ओके हाँ सर केयरलेस मिस्टेक्स बहुत हुआ, लेकिन देयर इज नो लाइक समथिंग व्हिच वी लेफ्ट बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट और समथिंग। ओके ओके तो फुल किसके आए फुल सर सेक्शन 1-2 में फुल आया है, पर इंटीजर टाइप में एक मतलब सिली मिस्टेक हुआ है बस। ओके इट वाज आउट ऑफ टोटल कितना था 60 था क्या 80 80 ओके ओके सर आप 2 डाउट ले लोगे अभी उससे रिलेटेड टेस्ट से। अरे हाँ टेस्ट का कौन सा डाउट था हाँ बताओ सर आप व्हाट्सएप पे हो, स्क्रीनशॉट भेज दो आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का। हाँ यू कैन टेल मी द क्वेश्चन नाउ हाँ टेल द क्वेश्चन सर क्वेश्चन तो ग्राफ था एक, तो वो कैसे डिक्टेट करूंगा। एक मिनट हाँ आई विल गेट द हाँ एक सर मैं आपको 1 सेकंड में व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। एक मिनट मैं ना वो दूसरा किसी ने क्वेश्चन मेरे को दिखा था मैं which question was that Sir, is he asking about question 11? Yes, question 11. question number 11 एक मिनट ओके हाँ उसने बोला ग्राफ यस यस हाँ हाँ उस ग्राफ में यूर आस्किंग है हाँ प्लीज टेल हाँ सर उसमें ए और बी ऑप्शन का एक आई विल रेज दिस वन हाँ सर तो सर आपने बोला था जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका वो कम होता है हीटिंग कैपेसिटी एक आई विल कैलोरीमेट्री के बाद। एक मिनट सर मैं रिलेशन देख लेता हूँ यू वांट ए ऑप्शन ना ए ऑप्शन में पहले यू वांट टू चेक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Q is equal to ms delta सर एक्स एक्सिस पे टाइम की जगह पे हम Q लिख सकते हैं ना, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म रेट। ठीक है प्रश्न हाँ पावर इनटू टाइम क्योंकि ये हीट को पावर इनटू टाइम लिखा मैंने सोर्स का पावर जो भी है और हमारा इंटरेस्ट इस पे है ना डेल्टा टी बाई स्लोप हाँ फिर उसके बाद क्या हाँ प्लीज चल हाँ उसके बाद क्या बोल रहे हो सर मैंने तो अलग ही लॉजिक लगाया सर। मैंने सोचा कि जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा हीट चाहिए रहेगा ना। नहीं सर, जितना ज्यादा टाइम है उतनी ज्यादा हीट ना, बिकॉज दे आर सेइंग दैट अगर ज्यादा हीट हो गई तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी तो कम टाइम लगेगा ना। लेकिन उन्होंने दे हीट इज सप्लाइड टू सर्टेन होमोजेनियस सैंपल एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब एज टाइम जैसे जा रहा है वैसे वो हीट देते जा रहे हैं। ये कांस्टेंट है तो ओके सर फिर तो हो जाएगा। और सर एक 6th क्वेश्चन भी था मतलब उसमें मेरे हिसाब से तो सर पैराबोला होना चाहिए 6 वाला हाँ सर सर xy is equal to constant आता है वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है ना, तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो y is equal to x square फॉर्म आ रहा था। एक मिनट कौन से किसके किसके बीच में इक्वेशन बनाना है सर हमें तो इधर आता है
PT is equal to constant हो जाता है, मुझको याद है. P और T बनाना है, P और T के बीच में. PT इक्वल टू कांस्टेंट आता है सर. तो हाइपरबोला हाइपर नहीं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना, वॉल्यूम इट इज एक्सपैंडिंग, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है. पर P और T का के ग्राफ बीच बनाया में था। PT का ग्राफ बनाना है तो रो को फिर P और T के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. रो को PM/RT लिखा मैंने और एक P गया तो क्या आ गया, PT/R/N. So that is the constant. तो PT is a constant. So hyperbola हो जाएगा. ये वाला hyperbola हो जाएगा. So this was from DC Pandey. ये वाला जो है, ये वाला इसमें okay, you are saying D option. Okay. यार फुल किसका आया? सर और एक और मतलब ऐसा मतलब एम्बिग्विटी है. एक आंसर है ना √3 आ रहा था, n इज इक्वल टू √3 आ रहा था, तो इंटीजर टाइप में मैंने 1.73 लिखा और जो आंसर जो गिवन है वो 1.7 आ रहा है. हाँ यार सर, वो चेंज नहीं किया अभी तक. ओके ओके, हाँ Yes sir. यस हाँ वो वाला ठीक है. आई हैव रिक्वेस्टेड देम. तो ये वाला मैंने उनको बोला है कि वाला इसने बोला है 1.73 का. सर मुझे एक छोटा डाउट था सर. एक क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन सेकंड, जिसमें एक मेटल शीट था और मेटल शीट में उन्होंने दो सर्कल्स कट आउट किए थे D1 एंड D2 डायमीटर के, सच दैट D1 इज ग्रेटर देन D2, और फिर वो शीट को हीट किया तो D1 एंड D2 को क्या होगा, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा सर, ऐसा क्वेश्चन था सर, वो एक बार बता दोगे? दोनों इंक्रीज होंगे ना, यूनिफॉर्म है ना. ये ऐसा है ना, ऐसा, और ये यहाँ पे कहीं ऐसा है, तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा, राइट? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा. जब फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होगा तो पूरा ऐसा फैलेगा ना. यस सर, आई एम लिसनिंग सर. तो उससे ये दोनों बढ़ेंगे ना फिर तो, नहीं? ये भी. So, but sir, what if it expands and covers the cutout region? Then the diameter will decrease. Why can't there be like this type of analogy? You are saying क्या if this expands and if suppose the sheet expands and then it will occupy the cutout region of the circle, then won't the diameter decrease? सर पर शीट तो यूनिफॉर्म है ना, तो अनइवन एक्सपेंशन कैसे होगा? फ्री एक्सपेंशन है, हाँ, ऑल साइड्स आर फ्री टू मूव. ओके सर, ओके. तो सर्कुलर शीट दिया नहीं है ना पर. ओके, यू आर सेइंग कि ओके ये जो है, हाँ फिर भी मान लो लेट्स से ये ऐसा कुछ है, तभी एक्सपेंशन तो सबका, हर एवरी एलिमेंट सभी के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मस्ट इंक्रीज. ओके सर, आई गॉट इट सर. ओके, हाँ, नेक्स्ट डाउट. एक फुल हाईएस्ट किसका आया? अमोक कितने आए? हाँ सर. हाउ वाज द स्कोर? सो ओवरऑल ठीक था, फिजिक्स में 2-3 सिली मिस्टेक्स किए. अरे हाँ. अजय के दो. हाँ ये somehow 3 errors. एक दो सिली एरर थे और एक तो 1.73 वाला. ओके हाँ, ओके. आर्यन, ओके 1.73 अगर आ गया तो पूरा फुल आ जाएगा क्या? सर मे बी. ओके आर्यन ठीक है. मानवी, how much you got? So I made a lot of silly errors. Like I knew the answer, but then in the exam, I don't know, like I messed up. Okay. So I think I got like 3 wrong or 4. I think. नहीं तो एक 1.73 वाला हो जाएगा तो फिर हो जाएगा ना. Yes, sir, but still my mistakes are very stupid. Like I knew it, but then also I got it wrong. Sir, in one question I messed up between the physics and chemistry, sir. Like the negative sign for work.
वर्क डन वाला हाँ सर, वो एनक्यू पूछा था तो मैंने फिजिक्स वाला वो अब निकाल लिया, तो उसमें नेगेटिव आ गया आंसर। अंश हाँ सर, मैंने वो पीटी ग्राफ पूछा था, मैंने पता नहीं क्यों उसको वॉल्यूम में लेके चले गया और मेरे को v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ रहा था, तो मैंने पैराबोला पैराबोला मार्क कर दिया, वीटी वही वाला ग्राफ बना मिस्टेक था दिया। बस, वही एक मिस्टेक था। नहीं सर, दो मिस्टेक। और सर वो स्पेसिफिक हीट वाला मेरे को लगा क्यू इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज होगा, तो उस लॉजिक से सर मैंने बहुत किया तो मेरे को अलग आंसर आ रहा था, बी आ रहा था मेरे को, तो 6 मार्क वहाँ चले गए। मल्टीपल चॉइस था तो 2 नेगेटिव एंड 4 6 मार्क्स। अदिति आशुतोष, जीत, आयुष, चलो फिर नेक्स्ट अभी मेजर टेस्ट के लिए कितना दिन है अपने पास? आज फिर 12th हो गया। एरर्स Sir, will properties of matter come in empty? No. Only जो fluid statics and dynamics. Okay sir. So we have how many days? अभी 80 इस मंथ में 18 days और फिर नेक्स्ट मंथ के लिए कब है भाई? 12th ना? 41 days. 23rd. 23rd. empty 23rd है, एक TWT है 12th को। नहीं 16th को है वो। हाँ वही 12 16th के। 16th को है, 16th ओके ठीक है। 34 days फिर अपन को ये वाला करना है। हाँ ओके गाइस, ये वाला थोड़ा सा हाँ उसको प्रैक्टिस भी करते रहो फ्लूइड्स का। और जो है गाइस हाँ थोड़ा सा यार इस वीक में आप ऑब्वियसली होमवर्क आप उसका उधर पढ़ रहे होगे ना, रोटेशन के लिए पढ़ रहे होगे, लेकिन यार प्लीज वो वाला अटेंड करना ना, क्या जो है आई मीन सर एक्चुअली है ना, अभी होमवर्क लास्ट वीक ही दिया था, वो हो गया रहेगा, मतलब 2 वीक्स अगो दिया था, तो आप दे सकते हैं आज। ओके ठीक है। और गाइस फिर वो भी अटेंड करना ना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना डाउट्स, हाँ डाउट्स में क्लास इलस्ट्रेशन थोड़ा आगे कर लेंगे तो 1-2 वीक थोड़ा आगे हो जाएंगे अपन। हाँ ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, वी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। बाय ऑल। बाय सर। Bye, sir. बाय।